Hello children, how are you all? Hope you all are fine. Welcome back to Social Studies class. In our today's class, we are going to start a new chapter. Chapter British Rule in India. Children, do you know we were ruled by someone? Yes, we were ruled by Britishers. We celebrate every year 15th August as Independence Day. We celebrate our Independence Day on 15th August because we got independence from Britishers on 15th August. So that day is celebrated every year as a national festival. So children, do you know how Britishers gained control over India? In this chapter, we will study why Britishers came, why they gained control over India, how they gained control over India and everything about it. So let's get started. Children, in previous class, in the previous chapter, we had studied about the voyages of exploration, right? हमने देखा था कि वास्को दा गामा एक पोर्चुगीज सेलर, एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने इंडिया का रूट ढूंढा था, है ना? इंडिया का रूट, सी रूट ढूंढा था. सो ब्रिटिशर्स भी है, वो भी सी रूट से इंडिया आए थे. So we will read each and every line and I'm going to explain you the chapter. So you have to be attentive, okay? British rule in India. We celebrate our Independence Day on 15th August every year. We became free from British rule on this day in 1947. Means till 1947 we were controlled by Britishers. Okay, the Britishers of United Kingdoms of Great Britain used to control us. ठीक है, the Britishers of United Kingdoms Great Britain, they had invaded many countries like India. India was also one of the country they had ruled over. So we are going to study about British rule in India. We became free. हमें आज़ादी मिली 15th August 1947 में. Let us learn how Britishers came to India and ruled over our कंट्री. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश लोग यहाँ आए और कैसे उन्होंने हमारे ऊपर राज किया. हाउ दे कंट्रोल्ड अस, हाउ दे रूल्ड ओवर आवर कंट्री. यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया. ठीक है, यूरोपियन ट्रेडर्स. Now Britishers are also Europeans. Okay, Europe is a continent and in that Britishers are one of the members of the country. They are one of the citizens of the country, European country. ठीक है, ब्रिटिशर्स है वो ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन से यहाँ पर आए थे. Now why did European traders came to India? In the olden days, पहले के ज़माने में इंडिया वॉज अ वेरी रिच लैंड. ठीक है, इंडिया वॉज वेरी रिच लैंड. पीपल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस केम हियर टू ट्रेड. दूर दूर से लोग यहाँ पर बिजनेस करने, ट्रेडिंग करने आते थे. यहाँ से चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट होती थी. ठीक है, यहाँ की चीज़ें वहाँ पर एक्सपोर्ट होती थी. पीपल फ्रॉम फार अवे places came here to trade. They bought things like spices, textiles and indigo. ठीक है, अब क्यों आए थे यहाँ पर? ट्रेडिंग के लिए आए थे. ट्रेडिंग मीन्स टू परचेज समथिंग और टू सेल समथिंग. ओके,
they wanted to purchase some products, some commodities, right? कौन कौन सी चीज़ें उन्हें ले जानी थी? उन्हें ले जानी थी स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड इंडिगो. Spices means all the masalas, okay? Textile means cloth, and indigo was a blue colored powder dye, a kind of blue dye. So these three things they wanted from our country. They wanted to buy from our country. Okay, so they came here for ट्रेडिंग. उनका पहले क्या एम था? ट्रेडिंग के लिए वो आए थे. मैनी यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म्ड कंपनीज टू ट्रेड विथ इंडिया. ठीक है, सो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ आए थे. यहाँ बहुत रिच लैंड थी, बहुत अपना देश है वो वेल्दी था, और यहाँ पर अवेलेबिलिटी चीज़ों की थी. तब वहाँ पर वो अवेलेबल चीज़ें नहीं थी, इसीलिए स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और इंडिगो के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे. और उन्होंने कंपनीज फॉर्म की थी. हर एक यूरोपियन कंट्री ने, उनके ट्रेडर्स ने अपनी अपनी कंपनी बनाई थी. सम ऑफ दिस कंपनीज सेट अप एंड कंट्रोल्ड स्मॉल टाउन्स. उन्होंने यहाँ पर भी अपना वर्क सेंटर अपना ओपन किया था. और सेटलमेंट इन इंडिया, यहाँ पर ही वो ट्रेडिंग के लिए आए थे, और कुछ मर्चेंट्स, कुछ ट्रेडर्स यहाँ पर भी सेटल हुए थे. ठीक है, सेटल होना यानी यहीं पर रहते थे, यानी यहीं पर वो रहते थे बिकॉज ऑफ ऑल द वर्क. ओके, द ब्रिटिश फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने भी एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. देयर वर ब्रिटिश ट्रेड सेटलमेंट्स. अभी ब्रिटिशर्स थे वो पहले कहाँ सेटल हुए, कहाँ पर वो रुके, कहाँ पर उन्होंने एस्टैब्लिश किया? मद्रास, कलकत्ता एंड मैनी अदर प्लेसेस. फर्स्ट दे सेटल्ड एट चेन्नई एंड कोलकाता. तो काफ़ी देश के लोगों ने, काफ़ी देश के ट्रेडर्स ने अपने अपने कंपनी बनाई थी. वो कौन कौन सी कंपनी थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ब्रिटिश ने भी कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी. अभी ये प्रोडक्ट्स है जो वो लोग यहाँ से ले जाते थे. ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? स्पाइसेस यानी कि मसाले. यहाँ पर आपको दिख सकता है कि इलायची, जीरा, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ें हैं. ओके, यू कैन सी द कार्डमम, द क्यूमिन सीड्स, द ब्लैक पेपर सीड्स एंड many things you can see in this image, okay, which are spices. They came here to get all these things, to get indigo, which is a blue color dye, to get cotton and to get tea. Okay, so ये कुछ products है जिसके लिए वो अलग अलग फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आई थी. तो यहाँ पर काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ आई थी. पोर्चुगीज़ सबसे पहले आई थी, कैलिकत में आई थी. ये आपने पढ़ा है, वास्को द गामा लैंडेड इन द कैलिकत. ओके, इन द कैलिकत. एंड फर्स्ट country to trade with India was Portuguese. Portuguese was the first to trade with India. India was a very rich country and it was famous for textiles, gold and indigo and even spices. Okay, so India was very famous for spices, gold, textile and
indigo. Soon after, the Portuguese, Dutch and French also started trading with India. And meanwhile, some British merchants also came to India. When Britishers first came to India, the ruler of India was मुगल एम्परर जहांगीर. तो जब ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में आए थे तो तब उस टाइम पे मुगल रूल चल रहा था. ठीक है, मुगल रूल ऑफ एम्परर जहांगीर. उस टाइम पे कौन किंग था? किंग वॉज जहांगीर, who gave them permission to set up center at सूरत. ओके, उन्हें परमिशन दिया था, ट्रेडिंग परमिशन, एंड ऑल्सो टू सेट अप ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत. अब हम आगे का पैराग्राफ देखेंगे. ठीक है, तो बेसिकली सब लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए ही आए थे. द ट्रेडर्स बिकेम द रूलर्स. हाउ ट्रेडर्स बिकेम द रूलर्स? द ब्रिटिश ट्रेडर्स became the most powerful among the Europeans. तो जो भी अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज आई थी, जैसे कि फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स है वो ज़्यादा पावरफुल साबित हुए, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बने. दे रियलाइज दैट दे वुड बिकम मच रिचर इफ़ दे कुड गेट द होल्ड ऑफ द लैंड इन इंडिया. ठीक है, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ट्रेडिंग ही क्यों, यहाँ पर हम रूल करेंगे, हम धीरे धीरे इस लैंड को अपने कंट्रोल में लेंगे. उनको लालच हुआ, उनको दे इन द ग्रीड दे डिसाइडेड दैट दे विल रूल द कंट्री. सो उस टाइम पे हमको पता है कि काफ़ी रीजन्स पे जहांगीर का रूल था, पर तब काफ़ी सारे किंगडम्स थे जो बहुत डिवाइडेड थे. At that time, India was divided into many kingdoms. बहुत सारे राजा भी थे. These kingdoms were always fighting with each other. ठीक है, तो ये जो किंगडम्स है वो हमेशा एक दूसरे पे अटैक करते थे और वो लोग भी बहुत फाइट करते थे. The British took advantage of this. ठीक है, सो ब्रिटिश ने सोचा कि हम इसी बात का एडवांटेज लेते हैं. वैसे भी यहाँ पर यूनिटी नहीं है, तो हम इसी बात का एडवांटेज लेते हैं. दे प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट इंडियन रूलर्स फ्रॉम देयर एनिमीज. तो जो भी इंडिया के जो इंडियन थे रूलर्स, उनको उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी टेरिटरी में अगर कोई भी अटैक करता है तो हम अपनी आर्मी, उन्होंने भी यहाँ पर आर्मी एस्टैब्लिश की थी, तो हम अपनी आर्मी, हम लोग भी आपके साथ मिलकर वॉर करेंगे. इन रिटर्न, बदले में आप क्या करोगे? आप हमें थोड़ा सा रीजन दे देना, थोड़ा सा पार्ट आप अपना किंगडम का हमें दे देना. ओके बच्चों, समझ में आया क्या कह रहे हैं ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोकल इंडियन किंगडम्स के किंग को बोला कि आप को हम भी प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, आपके ऊपर कोई वॉर करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे. वी विल ऑल्सो फाइट विथ योर आर्मी, वी विल बी ऑन योर साइड, एंड इन रिटर्न यू हैव टू हैंड ओवर सम पार्ट ऑफ योर किंगडम. यानी एक डील की उन लोगों ने. ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश ट्रेडर्स स्टार्टेड बिहेविंग लाइक रूलर्स. कहीं पर उन्हें कुछ एक पार्ट मिला, फिर दूसरे किंगडम का दूसरा पार्ट मिला. धीरे धीरे उन्हें काफ़ी लैंड और काफ़ी किंगडम्स मिले और वो रूलर्स की तरह बिहेव करने लगे. ठीक है बच्चों, यही टाइम था जब उन्हें परमिशन मिली थी यहाँ पर ट्रेडिंग की. फिर उन्होंने सोचा कि हम यहीं पर रूल भी करेंगे. ओके, दे डिसाइडेड दैट वी वांट टू control this land because this country is very rich, this place is very rich, so they decided to control the place. And this was the time when Mughal empire started declining. Okay, यही समय था जब मुगल रूलर्स का जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन हो रहा था. ठीक है, वो
कमज़ोर पड़ रहा था. The Britisher took advantage of the situation. The Britisher took advantage of the permission given to them and started gaining control over India. धीरे धीरे उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया. ठीक है, काफ़ी रीजन्स उन्होंने ऐसे लिए और वो रूलर्स की तरह बिहेव करने लगे. इंडियंस सफ़र अंडर ब्रिटिश रूल. ठीक है, बहुत जुल्म किया, बहुत खराब तरीके से बिहेव किया. ठीक है, तो इंडियंस ने बहुत ही गुलामी को सहन किया. ओके, दे सफ़र्ड अ लॉट. ठीक है, इंडियंस सफ़र अंडर ब्रिटिश रूल. इन दैट टाइम द ब्रिटिश कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ इंडिया. धीरे धीरे उनका जो एक्सपांशन होता गया, उनका कवरेज बढ़ता गया. धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी रीजन्स को कंट्रोल किया और मोस्ट ऑफ द इंडिया में उनका कंट्रोल बन चुका था. ठीक है, फिर क्या किया ब्रिटिशर्स ने? द ब्रिटिश रेज्ड एन आर्मी. ब्रिटिश ने ऐसी आर्मी बनाई जिसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे. इंडिया के लोगों को गुलाम बनाया. ठीक है, दे वर द मास्टर्स. दे बिहेव्ड लाइक द रूलर्स, लाइक द मास्टर्स. दे रेज्ड एन आर्मी दैट हैड इंडियन सोल्जर्स. दे डिड वॉट एवर दे वॉन्टेड. जो भी उनका मन हो, जो भी उनको करना हो, वो करते थे. दे इंक्रीज्ड द टैक्सेस. उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए. ठीक है, उन्होंने पैसे ज़्यादा लेने लगे. दे फोर्स द फार्मर्स टू स्टॉप ग्रोइंग फूड क्रॉप्स. उन्होंने फार्मर्स पे भी बहुत कंट्रोल किया. उन्हें फार्मर्स को फोर्स किया कि आप फूड ग्रेन्स नहीं उगाएं. ठीक है, उन्होंने फार्मर्स को बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिगो और कॉटन ही उगाने हैं. ओके, दे फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो प्लांट एंड कॉटन प्लांट बिकॉज दे वांटेड इंडिगो एंड कॉटन. ठीक है, बिकॉज दे वर बिकमिंग रिच, देयर कंट्री वॉज बिकमिंग रिच. ओके, सो दैट्स वाई दे फोर्स्ड the Indian farmers to grow indigo and cotton. They did not allow them to grow food crops. Okay, so the Indians who worked for British were treated badly. और जो भी उनके अंडर में काम करता था उन्हें भी बहुत ख़राब तरीके से उनके साथ भी रहते थे. They treated them very badly. उनके साथ बहुत ख़राब सुलूक करते थे. They were not allowed to hold high position. ठीक है, उन्हें कोई हाई पोजीशन नहीं देते थे. अगर उनके में टैलेंट हो, वो ज़्यादा काम करते हो, तो भी उन्हें लो पोजीशन पे ही रखते थे. एंड वेर पेड वेरी लेस. ठीक है, उनको बहुत कम पैसे मिलते थे. सो दे वर पेड वेरी लेस देन देयर ब्रिटिशर कलीग्स. ओके, ब्रिटिश के लोग जो वहाँ से आए थे और वो लोग काम करते थे, उनको ज़्यादा पेमेंट मिलता था. ऑल दिस मेड द इंडियंस सफ़र. इन सारे रीज़न के वजह से इंडियंस की हालत ख़राब होती गई. सब लोग बहुत पुअर होते गए. एंड दे वर अनहैप्पी. दे वर वेरी सैड. ओके, इतना कंट्रोल करते थे, सो दे वर वेरी सैड. दिस लेड टू अ ह्यूज रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है, रिवॉल्ट यानी कि विरोध. ठीक है, सब लोगों ने बहुत ही ओपोज किया. रिवॉल्ट का मतलब है एक्शन अगेंस्ट दोज इन पावर. यानी पावर में कौन था? पावर में ब्रिटिशर्स थे. तो ब्रिटिशर के अगेंस्ट में वो गए. दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. इन 1857 पहली बार उन्होंने रिवॉल्ट किया, यानी पहली बार उन्होंने ओपोज किया. This was the revolt of 1857. ठीक है, the first revolt, the first war for the independence. The revolt started when a new kind of rifle was given to Indian soldiers in British Army. क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी इंडियन सोल्जर्स रखे थे अपनी आर्मी में. उन लोगों को एक न्यू राइफल, एक न्यू वेपन दिया गया. वेपन एक न्यू हथियार दिया गया, जिस हथियार का जो कवरिंग है, ठीक है, जिस हथियार का जो ढक्कन है, ठीक है, या जो ट्यूब है, वो खोलना होता है मुंह से. ठीक है,
दे हैव टू बाइट ऑफ द कवर ऑफ कार्ट्रिज. कार्ट्रिज क्या है? अ ट्यूब दैट होल्ड्स द बुलेट. ठीक है, कार्ट्रिज इज अ ट्यूब दैट होल्ड्स द बुलेट एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस. तो मतलब वो राइफल यूज़ करने के लिए, वो एक्टिव करने के लिए उसको मुंह से बाइट करना पड़ता था. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर प्रॉब्लम क्या था कि जो भी कवरिंग था, जो भी कार्ट्रिज था, वो काऊ और पिग के फैट का था. इट वॉज ग्रीस्ड विथ द फैट ऑफ काऊ एंड इट वॉज ग्रीस्ड विथ द फैट ऑफ पिग. ओके, विच वॉज नॉट अलाउड इन देयर religion. The revolt of 1857. The revolt started when a new kind of rifle weapon was given to soldiers. ठीक है, सोल्जर्स जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, उन लोगों को राइफ़ल दिया गया. उस राइफ़ल में जो कार्ट्रिज था, जो ओपनिंग था, जो ट्यूब था, जिसके अंदर गन्स थी, जिनके अंदर बुलेट्स थी, वो कैसा था? The cartridge was greased, was covered with fat of animals that their religion did not allow them to eat. तो ये अगर राइफल यूज़ करना है तो उसकी कार्ट्रिज को विद द हेल्प ऑफ द माउथ उस कार्ट्रिज को निकालना पड़ता था. ठीक है, टू रिमूव द ट्यूब, टू रिमूव द कार्ट्रिज, इट वॉज ग्रीस्ड विथ, इट वॉज कोटेड विथ फैट ऑफ एनिमल्स. तो ऐसा बोला जाता था कि वो जो पार्ट है उसको एनिमल फैट से कवर किया है. एनिमल फैट यानी कि मीट, ओके, चर्बी से, एनिमल के मीट से उसे ग्रीस किया है. ठीक है, तो हिंदूज ऑपोज्ड बिकॉज इन हिंदू रिलीजन काउ इज कंसिडर्ड टू बी द गॉडेस. ओके, काउ इज ऑल्सो गिवन रिस्पेक्ट. सो Hindus also refused, and again Muslims, okay, the Muslims which were Indian Muslims, उन लोगों ने भी बहुत ही विरोध किया क्योंकि उनके रिलीजन में भी पिग का फैट अलाउड नहीं है. तो ये जो एनिमल फैट है वो इंडियन सोल्जर्स के रिलीजन में अलाउड नहीं था. इसके वजह से हिंदू और मुस्लिम की सेंटिमेंट्स, उनके फीलिंग्स हर्ट हुए थे. ठीक है, अगर उनको, वो लोग गुलामी तो सहते थे, वो लोग काम भी करते थे, पैसे भी उनको नहीं मिलते थे. ओके, दे वर सफरिंग बट दे कांट डू द थिंग्स विच आर नॉट अलाउड इन द रिलीजन. सो दिस हर्ट द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. ओके, रिवॉल्ट, वो जो वेपन था, वो जो राइफल था, वो जो गन था, उसका जो कवरिंग है, उसका जो ट्यूब है, वो मुंह से खोलना पड़ता था. पर वो जो ट्यूब है वो एनिमल की जो फैट होती है उससे कोट किया हुआ था, उससे कवर किया हुआ था. तो ये उनके हमारे रिलीजन में और मुस्लिम रिलीजन में इसको अलाउ नहीं किया गया है. ठीक है, हम बहुत प्योर समझते हैं गाय माता को, काऊ को, और पिग को वो लोग, उनके में भी मना है. ठीक है, तो वो लोग ऐसे बाइट ऑफ नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अभी इस डिसीजन से बहुत ही हर्ट हुए थे. तो फिर उन लोगों ने अपोज कैसे किया? ठीक है, मंगल पांडे, अ सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी इन बंगाल. ठीक है, बंगाल में मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी. ये जो इंडियन था, ठीक है, आप देख सकते हो, उसका इमेज देख सकते हो. ओके, मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी. ही रिफ्यूज्ड टू यूज़ दिस राइफल. उन्होंने बोला कि मैं ये वेपन यूज़ नहीं करूँगा, मैं ये राइफल यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है. द ब्रिटिशर अरेस्टेड मंगल पांडे एंड पुट हिम टू डेथ. फिर ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया. ओके, अरेस्ट करना यानी पकड़ना. उनको पकड़ लिया, उन्हें जेल में डाल दिया और फिर उन्हें सज़ा दे दी, उन्हें मौत दे दी. ठीक है, उसको मार दिया. इस बात से काफ़ी सोल्जर्स को बहुत गुस्सा आया. सो दे अरेस्टेड मंगल पांडे एंड दे
killed him. Okay, they put him to death. Soon after this, other Indian soldiers from Meerut is a place, मेरठ के जो सोल्जर्स थे और काफ़ी अलग पार्ट के जो सोल्जर्स थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग दिल्ली जाएंगे. वी विल गो टू दिल्ली एंड वी विल कंप्लेन, वी विल टेल ऑल द थिंग्स टू एम्परर बहादुर शाह जफ़र. ठीक है, अभी मुगल रूलर कौन है जो रूल कर रहा है दिल्ली को? बहादुर शाह जफ़र. तो उन लोगों ने सोचा कि हम एम्परर बहादुर शाह जफ़र से ये सारी बात करेंगे. सो दे मार्च टू दिल्ली एंड कैप्चर्ड द सिटी. दे मेड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र देयर किंग. उन्होंने सोचा कि हम बहादुर शाह जफ़र को हमारा किंग बनाएंगे और उससे सारी बात करेंगे. The revolt spread from the soldiers to farmers and other people who were unhappy with British rule. Okay, ये जो रिवॉल्ट है वो बहुत स्प्रेड हुआ. ठीक है, लोग जो परेशान थे ब्रिटिश के रूल से, फार्मर्स परेशान थे, क्योंकि फार्मर्स को भी बहुत इन लोगों ने परेशान किया है. ठीक है, तो फार्मर्स परेशान थे और भी जो लोग अनहैप्पी थे, दुखी थे, वो लोग साथ में रिवॉल्ट में ज्वाइन हुए. मैनी इंडियन रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन द रिवॉल्ट. काफ़ी इंडियन रूलर्स जो तब के टाइम पे रूलर्स थे, वैसे रूलर्स ने भी रिवॉल्ट में, वो रूलर्स भी रिवॉल्ट में ज्वाइन किया, उन लोगों ने भी. एंड फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, और ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने भी लड़ाई करने का डिसीजन लिया. ठीक है, तो रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट यानी अपोज द पावरफुल पर्सन, द पर्सन इन पावर. तो उन्होंने भी अपोज किया ब्रिटिश रूल को. अभी ऐसे कौन कौन से रूलर्स थे? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी. ठीक है, क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी जो है रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी ये रिवॉल्ट में ज्वाइन किया. क्यों ज्वाइन किया? उन्होंने इसीलिए ज्वाइन किया कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनके जो एडॉप्टेड सन है उनको ये लोग नेचुरल हेयर नहीं मान रहे हैं. ठीक है, इनकी पॉलिसीज थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. उसके अकॉर्डिंग अगर कोई किंग मर जाता है और उसके पीछे उसका खुद का बच्चा नहीं है, ओके, नेचुरल हेयर नहीं है, और अगर एडॉप्टेड है तो पूरा किंगडम ब्रिटिशर्स ले लेंगे. तो इसके वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपोज किया, नाना साहेब ने भी अपोज किया, बेगम हज़रत महल ने भी ये रिवॉल्ट में ज्वाइन किया. ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हज़रत महल, इन लोगों ने ज्वाइन किया. नाना साहेब का पिक्चर आपको दिया है ना. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, इन लोगों ने ये दो पॉलिसीज़ थी इन लोगों की, जिनके वजह से काफ़ी किंगडम्स है वो उनके पास, उनके कंट्रोल में आ रहे थे. तो ये पॉलिसी के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा. रानी लक्ष्मीबाई ने भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ज्वाइन किया. यानी ये रिवॉल्ट में काफ़ी फार्मर्स थे, काफ़ी सोल्जर्स थे, काफ़ी दूसरे लोग भी थे और रूलर्स भी थे. तो वॉर हुआ. ठीक है, वॉर हुआ ब्रिटिशर्स और इन लोगों के बीच में, और इसको क्या कहते हैं? सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिपॉय म्यूटिनी. ओके, सिपॉय रिबेलियन, रिबेलियन यानी कि अपोज करना, विरोध करना. ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी 1857. ईस्ट इंडिया कंपनी इवन हैड इट्स ओन आर्मी. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास खुद की आर्मी थी, लेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड स्टाफ्ड बाय द सिपॉयज. ठीक है, जिसमें लीडर्स थे वो कौन थे? ब्रिटिश और ही थे, ब्रिटिश के लोग ही थे, बट सोल्जर्स थे अपने इंडियन भी थे. उसमें इन लोगों को एक राइफल दिया था जो कवर्ड था, जो कोटेड था फैट से, जो कि रिलीजन सेंटिमेंट को हर्ट करता था, और इसी वजह से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था. इस रिवॉल्ट में काफ़ी लोग ज्वाइन हुए थे, काफ़ी फार्मर्स ज्वाइन हुए थे, क्योंकि फार्मर्स के ऊपर भी बहुत अत्याचार कर रहे थे. फार्मर्स के पास से टैक्सेस लेते थे, फार्मर्स को कंपलसरी इंडिगो और कॉटन प्लांट्स ही उगाने पड़ते थे, और उसके बहुत कम दाम ये लोग उनको
देते थे. ओके, वेरी लो कॉस्ट दे यूज टू बाय द रॉ मटीरियल. ओके, रॉ मटीरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए वो लोग बहुत ही कम पैसे में इनके पास से रॉ मटेरियल लेते थे और बहुत परेशान करते थे. डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कॉन्कर हैड वर्कड वेरी वेल फॉर द ब्रिटिशर्स. ओके, उन लोगों ने डिवाइड किया राजाओं को और धीरे धीरे पूरे इंडिया में उन लोगों ने कंट्रोल किया. यू कैन सी इन दिस इमेज रानी लक्ष्मी बाई. रानी लक्ष्मी बाई वॉज किल्ड इन बैटल while defending her kingdom against the British. ठीक है, ब्रिटिश से अपने किंगडम को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने खुद युद्ध किया था और युद्ध में वो हार गए. ठीक है, और मर गए, वो शहीद हो गए युद्ध में. द एंड ऑफ द रिवॉल्ट. ये रिवॉल्ट, ये वॉर, ये ऑपोजिशन कब ख़त्म हुआ? द ब्रिटिश हैड मोर वेल्थ एंड बेटर वेपन्स देन इंडियंस. ब्रिटिश थे, उनकी आर्मी में ज़्यादा अच्छे वेपन्स थे. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हम लोगों की कंडीशन ख़राब कर दी थी. अभी उनके पास भी बहुत सारा पैसा था. ठीक है, ब्रिटिश हैड मोर वेल्थ एंड बेटर वेपन्स देन द इंडियंस. दे वर ऑल्सो मोर ऑर्गेनाइज्ड. वो बहुत ही सिस्टमेटिकली काम कर रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ उन्होंने प्लान किया, मैनेज किया. मैनी इंडियन रूलर्स, स्पेशली दोज हु एंजॉयड ब्रिटिश प्रोटेक्शन, डिड नॉट जॉइन द रिवोल्ट. ठीक है, जिन किंगडम्स ने अपने अपने पार्ट दे दिए थे, उन लोगों ने रिवोल्ट में ज्वाइन नहीं किया था. ठीक है, द ब्रिटिशर्स हैड सुपीरियर पावर बिकॉज द रिवॉल्ट फेल्ड. ये रिवॉल्ट एक फेलियर था. ठीक है, रिवॉल्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन इंडियन किंग्स, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्रॉपर वेपन्स, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पहली बार युद्ध हुआ था, कोई तैयारी नहीं थी इतनी अच्छी सी. ठीक है, और जो है इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी उन लोगों में. मैनी लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट वर किल्ड और कैप्चर्ड. काफ़ी जो लीडर्स थे उस रिवॉल्ट के, जो आगे आए थे, उन लोगों को या तो गिरफ्तार कर दिया था, पकड़ लिया था, या तो उन्हें मार दिया था. द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट वर किल्ड और कैप्चर्ड एंड ब्रिटिश वर एबल टू क्रश द रिवॉल्ट विद द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, ब्रिटिशर ने रिवॉल्ट को भी कंट्रोल कर लिया. बट द हीरोज ऑफ द रिवॉल्ट वर मंगल पांडे, नाना साहेब, तांटिया टोप एंड रानी लक्ष्मी बाई. On 29th March 1857, an Indian soldier, Mangal Pandey, attacked the British officer near Calcutta, for which he was hanged to death. ठीक है, मंगल पांडे ने अपोज किया था और एक ब्रिटिश ऑफिसर को अटैक किया था. एक ब्रिटिश ऑफिसर के खिलाफ हुए थे वो, इसी रीज़न से उन्हें मार दिया गया. उसके बाद एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ जिसमें सोल्जर्स, फार्मर्स, काफ़ी रूलर्स भी ज्वाइन हुए, पर जो भी लीडर्स थे उनको या तो पकड़ लिया या तो उन्हें मार दिया. On 10th May, Indian soldiers in Meerut shot their officers and took over Meerut. Then they marched to Delhi. फिर वो दिल्ली गए to meet the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar to request him to lead the revolt. The revolt spread to many parts of India, but the revolt was a failure. Okay, why it was failure? Because of not proper planning. Okay, because many kings were still enjoying the protection, that's why. Okay, though the revolt was crushed within a short time. ठीक है, रिवॉल्ट है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया. रिवॉल्ट को ब्रिटिशर्स ने स्टॉप करवा दिया. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने रिवॉल्ट के सामने ब्रिटिशर्स ने जवाब दे दिया. ब्रिटिशर्स crushed within a short time. Revolt was crushed by Britishers. It played a very important role in India's fight for freedom. ठीक है, रिवॉल्ट
आगे नहीं बढ़ा, रिवॉल्ट एक फेलियर था। और कहते हैं ना, फेलियर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्राइंग, ओके। पर लोग आगे आए, लोगों ने रिवॉल्ट किया, ठीक है, लोगों ने अपोज किया, एक शुरुआत मिली, एक स्टार्ट हुआ, कुछ ब्रिटिशर्स के सामने लोगों ने लड़ा, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम when Indians revolted. So though revolt was crushed, it played a very important role in India's fight for freedom. यहीं से फाइट शुरू हुई थी। In fact, Indian historians often call it, क्योंकि ये रिवॉल्ट था जिसमें लड़ाई भी हुई थी, इसीलिए काफ़ी हिस्टोरियंस मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है, ठीक है। वॉर यानी कि युद्ध, ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द रिवॉल्ट यूनाइटेड पीपल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। पूरे इंडिया में सारे लोगों ने रिवॉल्ट ज्वाइन नहीं किया था, पर काफ़ी अनसेटिस्फाइड लोग, काफ़ी अनहैप्पी लोगों ने ये रिवॉल्ट ज्वाइन किया था। तो एक तरीके से काफ़ी लोग साथ में आए थे। द रिवॉल्ट यूनाइटेड जॉइंड मैनी पीपल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो फोर्स्ड, उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर भी एक इम्प्रेशन डाली। इट ऑल्सो फोर्स्ड द ब्रिटिश टू चेंज द वे दे रूल्ड इन इंडिया। रिवॉल्ट से क्या हो, रूल एकदम से ख़त्म नहीं हुआ, पर काफ़ी कुछ बदलाव आया, ठीक है। रूलिंग का तरीका चेंज हुआ, एक शुरुआत हुई कि जिससे लोगों को होप्स मिले, लोगों को आशा मिली कि नहीं, हम कभी इस गुलामी से, इस स्लेवरी से हम निकल सकते हैं। द ब्रिटिश आर्मी वर कॉल्ड द इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स है, ठीक है, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्हें सिपॉय कहते थे। सिपॉय यानी कि सिपाही, ओके, सिपॉय कहते थे। सो द रिवॉल्ट स्टार्टेड बाय देम इन 1857 इज ऑल्सो कॉल्ड, समटाइम्स कॉल्ड द सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी भी इसे कहते हैं। म्यूटिनी यानी एक ऐसा एक्शन लेना, ठीक है, जिससे हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपके रूल्स ओबे नहीं करेंगे, हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। A painting showing the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar being arrested by British after the revolt of 1857, ठीक है। रिवॉल्ट था, जो वॉर था, ठीक है, जो रेज था लोगों में, वो जब क्रश किया ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद, रिवॉल्ट के बाद उन्होंने मुग़ल एम्परर को भी बंदी बना लिया, उन्हें भी कैप्चर कर लिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ इंडियंस। ओके चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, ओके। रीड द चैप्टर and watch the video again, okay. If you have any doubt, you can call, okay. Feel free to call or message, okay. Thanks for watching. Bye. Take care.